the detailed study of plasma membrane or cell membrane. As we know, the cell, the outermost layer of the cell is called as cell membrane, or we can say a plasma membrane. So today we will study the structure of plasma membrane. The term plasma membrane is firstly discovered in year 1855 by the scientist Charles Nageli. If we will see this plasma membrane in a normal microscope or light microscope, then we will see a single structure, a single layer like structure only. But when we will see it in a electron microscope, then we can see the detailed biological membrane of this plasma membrane. This plasma membrane is basically made up of phospholipids plus proteins, in which about 75% of phospholipids are there and remaining proteins, cholesterol and some amount of polysaccharide also. सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल. 1855 में कार्ल नेगली साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया. व्हेन वी विल सी इट बाय द हेल्प ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप, देन वी विल सी ओनली अ सिंगल लेयर लाइक स्ट्रक्चर. बट व्हेन वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन वी विल सी द detailed structure of the plasma membrane. This plasma membrane is basically made up of phospholipids and proteins and some amount of cholesterol and polysaccharides. 75% of phospholipids are there. If I will talk about the thickness of it, it is about 7 nanometer thick plasma membrane. It is living, thin, delicate, elastic. It is living, thin, delicate, elastic and selectable permeable membrane. Listen, मैंने यहाँ पर बात की एक सेल की. आपको पता है these are the group of cell. Okay, this one is cell membrane or plasma membrane. In animal cell, the outermost layer of cell is a plasma membrane. But in the case of plant, the outermost layer of plant is a cell wall. So here we are talking about the outermost layer of animals, that is a plasma membrane. Okay, so this plasma membrane is living. We know it is living. It is thin, delicate, elastic. So there is a scientist named Singer and Nicholson in year 1972. ये जो इनकी स्ट्रक्चर है ना, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने देखा तब उन्हें किस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दी होगी, उसी को लेकर इन्होंने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया, उसकी स्ट्रक्चर का मॉडल बनाया, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. According to this model, plasma membrane is a bilayer. Means ये दो लेयर की बनी हुई स्ट्रक्चर है, like this. Here we have the structure of fluid mosaic model. See, this one is layer 1 and this one is layer 2. This round part is phosphorus and this part is lipid. It means this one is phosphorus, this one is lipid, this one is lipid, this one is phosphorus. Clear? फॉस्फोलिपिड लेयर जो है वो इस तरीके से, अगर मैं आप सब लोगों ने सैंडविच खाया होगा, तो हियर आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ सैंडविच. सपोज दिस वन इज अ ब्रेड स्लाइस, ओके, एंड दिस वन इज फॉस्फोरस, दिस वन इज लिपिड, दिस वन इज फॉस्फोरस, दिस वन इज लिपिड. मीन्स ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये क्या है, लिपिड है, और ये जो है वो मेरा क्या है, फॉस्फोरस है. और इस तरीके से अरेंज रहते हैं दो ब्रेड स्लाइसेस. ठीक,
तो ये जो मेरी 2 ब्रेड स्लाइसेस हैं जो ये अरेंज हैं, तो मैं कह सकती हूँ दिस वन इज फॉस्फोरस लिपिड, दिस वन इज लिपिड, दिस वन इज फॉस्फोरस। तो इस तरीके से जो मेरी किसकी लेयर है, ये जो मेरी कहना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, वो उसी तरीके से अरेंज होती है। मीन्स जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसमें जो फॉस्फोरस है वो बाहर की तरफ रहता है, जो लिपिड जो है वो बीच में रहता है। ठीक है, अब सेकेंड बात आती है फिर प्रोटीन्स कहाँ होती हैं। इन दोनों ब्रेड स्लाइसेस के बीच में जैसे हम क्या फिल करते हैं, जैसे सपोज हम आलू फिल करते हैं, तो जो इसके बीच में क्या है, सपोज आलू लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा कि एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर हो गई। तो जिस तरीके से इसके बीच में यहाँ पे क्या है, पोटैटो फिल है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, प्रोटीन्स हैं। ठीक, तो मीन्स दिस वन इज फॉस्फोरस, दिस वन इज लिपिड, दिस वन इज लिपिड एंड दिस वन इज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोलिपिड्स हो गया और उनके बीच में क्या हो गया, प्रोटीन प्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से ये मेरा है फॉस्फोरस लिपिड, लिपिड फॉस्फोरस और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। ये क्या है, मेरा प्रोटीन है। अब से यहाँ पे हम समझेंगे कि जो प्रोटीन जो है ना, अब एक आप बात बताइए, जो लिपिड जो है आपको पता है ये क्या है, फैट है। तो फैट होने की वजह से क्या होगा, एक इस तरीके से जेली लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, मीन्स उसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो जो फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में, दोनों फॉस्फोलिपिड लेयर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोटीन का पूरा पार्ट जो होता है आपको बाहर से दिखाई नहीं देता, कुछ पार्ट ही दिखाई देता है। द पार्ट दैट आउटसाइड दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो बाहर से दिखता है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और जो नहीं दिखता दैट। हियर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस वन इज फॉस्फोरस, दिस वन इज लिपिड, दिस वन इज फॉस्फोरस, दिस वन इज लिपिड। मैंने बताया फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सम पार्ट ऑफ द प्रोटीन कैन बी विजिबल फ्रॉम आउटसाइड दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एंड द पार्ट ऑफ द प्रोटीन दैट इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। समटाइम्स व्हाट हैपन कि कुछ जो पोर्शन होता है किसका, नीचे जो बीच में जो लिपिड जो है, वो लिपिड वाला जो पोर्शन है कभी कभी बाहर निकल आता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड। We can conclude with the help of this that suppose this one is phosphorus, this layer is phosphorus, this one is lipid, लिपिड फॉस्फोरस ने मिलकर क्या बना दी, लेयर 1। हियर दिस वन इज लिपिड, दिस वन इज फॉस्फोरस, and in between these two layers what is present, proteins. So here you can see that if the protein will cover the whole part of lipid, then this protein will be called as intrinsic protein. Intrinsic protein कब बोलेंगे, when it will cover the whole part of lipid layer. But suppose if the protein is present here only, it means if it is present on the outer surface or on the inner surface only, means extrinsic कब बोलेंगे, extrinsic protein कब बोलेंगे, जब या तो ये outer part और inner part of lipid पर क्या होगी, present होगी. So now we can say it is made up of 2 layers. Each layer is made up of phosphorus and lipid, in which phosphorus always remains outside and lipid is present in between both phosphorus layers. In between the lipid layer, protein is present. If the protein will cover the whole part of the lipid, then it will call as the intrinsic protein, and it will not visible from outside. And if it will cover the outer or inner part of the lipid layer, then it will be called as extrinsic protein that can be seen from outside. As you can see, यहाँ पर जो लिपिड के बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो हमें क्या फील होता है, हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो प्रोटीन है ये क्या काम कर रही है, ये फ्लोट कर रही है कहाँ पर, लिपिड के, लिपिड में क्या कर रही हैं, ये फ्लोट कर रही हैं, जिसकी वजह से कैसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, मोज़ेक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं. मोज़ेक मीन नॉन डेफिनिट. Okay, this is all about the structure of plasma membrane. What is the function of the lipid layer? Here lipid layer will provide the flexibility, and this protein layer is helpful or act as enzyme
It is provide selectable permeability. Here, what do you mean by permeability? Suppose two cells are there, 1 and 2. If one substance will migrate or move from this to this, it is by the help of the plasma membrane. Means वो plasma membrane ही है जो किसकी तरह काम कर रही है, इंटरमीडिएट की तरह काम कर रही है और एक मटेरियल को एक से दूसरे में ले जाने का काम कर रही है. इट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि वो किस सब्सटेंस को अंदर जाने देगी और किस सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं देगी. सपोज मम्मा डेली चाय बनाती हैं, तो चाय बनाने के बाद जब वो चाय को छानती हैं तो जो सीब है हमारे पास, वो जो सीब है वो क्या काम करती है, सेलेक्टेड मटेरियल को ही नीचे जाने देती है, रिमेनिंग को रोक देती है. दैट इज सेलेक्टेबल परमेबिलिटी. सो दिस लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अ सेलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन. मीन्स ये जितने भी सब्सटेंसेज हैं उन्हें पहले सेलेक्ट करती है और सेलेक्ट करने के बाद क्या काम करती है, आगे ट्रांसफर करती है. हियर आर सम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर ऑल्सो देयर, लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपोर्ट, endocytosis and exocytosis. This I will discuss in next video. Thank you.